fine. So the thing is that my name is Ubadur Rahman and I'm representing Vision CSS Network. And today's seminar is essentially based on the screening test and all government job exams, specifically the ones which are ongoing. So the thing is that let me tell you first about the institute. Essentially, what we focus on is the credibility, faculty, and system, and the results. Because practically we go on the results. Because the thing is that हम लोग इस जो students होते हैं ना उनकी इंडिविजुअल ग्रूमिंग पे फोकस करते हैं बिकॉज अपेरेंटली एज यू ऑल नो कि कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है गवर्नमेंट जॉब्स में और सीएसएस के एग्जाम में स्पेसिफिकली एज यू ऑल नो अराउंड 40,000 people apply in the exam and by the end of the process there are only like 300 to 350 candidates, so the only way possible to get through it is to be individually focused on. So that's what we do over here, and that is proven by our previous record because we have numerous students who have qualified government job exams as well as CSS exam, and they are working in the government sector. Uh, Not only we have students as well as we have seasoned mentors, we have qualified faculty who are serving bureaucrats, who are people from government institutes, and subject specialists who are going to who teach you subjects uh, holistically, not only from the perspective from the subject, but how you're supposed to uh, how you're supposed to attempt the exam, and what are the common things you need to know, what are the tips, tricks, and the tactics you need to know in order to take the exam. As you all know, the thing is CSS का जो pattern है वो change हो गया अब since last time से अब पे एक screening test introduce हुआ है which is MCQ based exam जिसकी registration भी probably आज से start हो गई है और उसमें दरअसल आपके जो पेपर बेस्ड एग्जाम था उससे स्विच होके वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में आए हैं जिससे स्क्रीन आउट होके स्टूडेंट्स फिर क्वालिफाई करेंगे पेपर बेस्ड एग्जाम में. उसमें 200 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं. वन पेपर बेस्ड एग्जाम ही है जैसे बाकी गवर्नमेंट जॉब्स का होता है, लेकिन द डिफरेंस है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिफरेंट होंगे थोड़े, क्योंकि सीएसएस के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं से ही कुछ अखज करके उन्होंने ये वाला पेपर बनाया और 200 मार्क्स का होगा. यूजुअली 100 मार्क्स का वन पेपर एग्जाम होता है, तो यहाँ से क्वालिफाई करके फिर देन मूविंग ऑनवर्ड्स आप पेपर बेस्ड एग्जाम पे जाएंगे. उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा फोकस है वो है ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स का. वो वन पेपर एग्जाम जो पीपीएससी और एफपीएससी ई का है वो उसकी तैयारी कराएंगे. अराउंड 40 डेज का सेशन होगा और इसमें आपको होलिस्टिक लेवल पे तैयारी कराएंगे एज इन कि जितने सब्जेक्ट्स होंगे स्पेसिफिकली जो डिपार्टमेंट बेस्ड होंगे या फिर जो जनरलाइज्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं वो वाले. एंड द थिंग इज के with the passage of time what I have realized from this institute is that यहाँ पे not only आपका what makes the difference from other institutes and this institute is that not only the faculty but also that we have the people who have been through this process, who know this process and who have qualified this process, so they know it inside out. तो इस वजह से हम I consider this institute as a credible institute and they can actually get you through the entire process. और इसके अलावा the thing is that for these sessions we are doing it online as well as we are doing it on campus. We have two campuses and two campuses which sir will mention later on in the meeting. So आप वो ज्वाइन करें, आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम वाला करें बिकॉज यू नो के ऑन एंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं. इवन रिसेंटली देयर इज अ सब इंस्पेक्टर पोस्ट गोइंग ऑन पीपीएससी की, उसके लिए भी काफ़ियों ने रजिस्टर किया होगा एंड ऑल दैट. तो इसी तरह की स्पेसिफिकली जो ऑनगोइंग होते हैं या आगे आने वाले होंगे या पहले आपने अप्लाई कर चुके हैं और आपका एग्जाम में आपने अपीयर होना है, तो उसके लिए आप वो सेशन ज्वाइन करें तो इट विल बी entirely fruitful. And I assure you that by the end of this session you would know the difference within you and you would know कि starting में आपकी क्या knowledge, it's just not about knowledge base, वो तो आपका increase हो गए because apparently we have people who
who are going to teach you basic stuff, not only basic stuff, but from basic stuff to advanced stuff which they ask. क्योंकि with the passage of time revise होता रहता है आपका जो question bank है, तो उसका तरीका ये होता है कि आप ऐसे लोगों से सीखें जो ऑलरेडी उस प्रोसेस को जानते हो और उस सब्जेक्ट के ins and outs को जानते हो. तो we have specialists for that, and the thing is that by the end of this session, by the end of the entire 40-day session, you'll know the difference, and you'll be confident to appear in the exam, and not only for CSS but also for a government jobs exam. And I wish you best of luck for that. And I guess we have our faculty with us, so I'd like to invite Sir Zain if he's here with us. Assalamu alaikum. Welcome, Sam. Thank you so much, Sir Ubaid. आपका complete हो गया? Yes, sir. Over to you, sir. जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. इन्होंने मेरा नाम आपको बता दिया. माय नेम इज सैयद ज़ैनुल आबिदीन. मैं अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में करंटली सर्व कर रहा हूँ. आई हैव बीन सिलेक्टेड थ्रू द पीपीएससी कमीशन. अच्छा, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आप में से जो है I see overall 15 to 16 participants. Now coming to the point, students, first of all ये assumption अपने ज़हन से निकाल दें कि ये कोई convincing session है that we have to increase the number of students, or just like जिस तरह traditional academies होती हैं, seminar conduct कर लेती हैं और बच्चे बैठे होते हैं और उन्हें हम शुरू कर देते हैं बताना कि you should join this and that. The first point is कि जो मैं आपसे discuss करना चाहता हूँ, ये सेमिनार रखने का जो बुनियादी मकसद है, बट चलें उससे पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं. ये जो विजन इंस्टीट्यूट हमने बनाया है, व्हाट इज़ दिस विजन इंस्टीट्यूट, और इसका नाम विजन क्यों रखा है? ये बेसिकली आइडिया जो है, हमारे साथ जो बैठे हुए हैं गिलानी साहब, इनका आइडिया है. विजन के पीछे जो स्टूडेंट्स विजन है, वो विजन में आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, शायद उससे फिर आपको आज की जो मीटिंग है, सेमिनार है, उसकी कोई सेंस बन सके. विजन के पीछे जो विजन है वो दैट इज बिकॉज एक टाइम पे हम भी स्टूडेंट्स थे आपकी तरह. मैं, गिलानी साहब, जमान साहब हैं, उबैद साहब, हम आपकी तरह स्टूडेंट्स थे और हमने जो प्रॉब्लम्स फेस की हैं, बिलीव मी इट टुक अ लॉट व्हाइल कि हमें एक पॉइंट ऐसा आ गया कि हमें समझ नहीं आई कि हमने किधर जाना है, क्या पढ़ना है, किस तरह तैयारी करनी है. वी वर टोटली लॉस्ट. So it took a number of years to make sense कि यार ये हम किस सिस्टम में फंसे हुए हैं. कमीशन के एग्जाम रहे हैं, कभी कोई एग्जाम है, कभी सीएसएस की तैयारी, पीएमएस एंड सो ऑन. इस सारे प्रॉब्लम में, इस सारी जो सूरत हाल है जो हम फेस की, यहाँ से हमें एक आइडिया है कि यार एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए जो कि स्टूडेंट फ्रेंडली हो, जो कि बिजनेस ओरिएंटेड ना हो. उसके पीछे जो विजन है वो ये विजन है. अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये कोई कन्विंसिंग सेमिनार नहीं है कि आपको कन्विंस करना. इट्स योर चॉइस, यू वांट, आप जो मर्जी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करें. लेकिन हमारा जो प्राइमरी मकसद है, दैट इज टू एक्विप यू, दैट इज टू प्रोवाइड यू विद टूल्स, आपको इस काबिल कर देना कि आप जाके एक जॉब ले सकें. और बिलीव मी, दैट इज आवर अचीवमेंट. आपने देखा होगा कि हमने विजन के पहले पेज पे लिखा हुआ है 130 प्लस सर्विंग स्टूडेंट्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स. हमारा जो विजन है, दैट इज टू गिव यू, दैट इज टू एनेबल यू टू सिक्योर अ डिसेंट रिस्पेक्टेबल जॉब जो कि आपके एस्पिरेशन से कंसिस्टेंट है. दैट इज आवर एम. अब आप में से कई लोग जो हैं वो एमफिल भी होंगे, कुछ लोग डॉक्टर्स भी होंगे, इंजीनियर्स तो बेतहाशा हैं, मास्टर्स भी होंगे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप लोग जो है अपनी लाइन में जाने के बजाय यहाँ पे क्यों आए? हम इंटरव्यू में जो मर्जी कह लें कि जी वी वांट टू सर्व एंड दिस एंड दैट, बट द रियल थिंग इज द सिचुएशन ऑफ आवर इकोनॉमी. मार्केट्स में जॉब नहीं है, नौकरियां नहीं है, रिस्पेक्टेबल जॉब्स नहीं है. दैट इज व्हाई, दिस इज वन ऑफ द रीजंस आई मीन कि हम जो है इस तरफ आते हैं, पीपीएससी की तरफ, एफपीएससी की तरफ. लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो, बिलीव मी, इवन ब्राइट स्टूडेंट्स, सर जो हैं बैठे हैं, वी ऑफन डिस्कस ड्यूरिंग आवर प्राइवेट कन्वर्सेशन, इतने ब्राइट स्टूडेंट्स ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कई सालों से लगे हुए हैं, पीपीएससी का इम्तहान पास नहीं हो रहा, एफपीएससी का इम्तहान पास नहीं हो रहा, नौकरियां नहीं मिल रही प्राइवेट सेक्टर में. बिलीव मी, दैट इज
वन ऑफ द बिगेस्ट जो है ना, वो एक चीज मैं और गिलानी साहब और हम सारी फैकल्टी हम ये फील करते हैं कि इतने लाइक लोग और 3+ GPA 3.5+ GPA नौकरियां नहीं मिल पा रही। उसकी वजह ये नहीं है कि आप लोगों में स्किल की कमी है, आप लोग इंटेलिजेंट नहीं है। अगर आप लोगों ने डिग्रियां की हैं तो यू श्योरली आर इंटेलिजेंट, आप में श्योरली स्किल्स हैं। लेकिन जो स्किल यहाँ पे चाहिए, जो स्किल आपको ये मंजिल क्रॉस करने के लिए चाहिए, PPSC हो गया, FPSC हो गया, CSS PMS, जो भी आपने जहां भी आपने इम्तहान देना है, यहाँ पे रूल्स ऑफ द गेम आर डिफरेंट। यूनिवर्सिटी में अपने एमफिल में मास्टर्स में आप लोगों ने जो जिस तरह आप लोगों ने अचीव की है डिग्री, बिलीव मी दैट इज इजियर, लेकिन उसके रूल्स और थे। यहाँ पे रूल्स डिफरेंट है और यही हमारा काम है। मैं अपने आप को कोई एज सच जो स्ट्रिक्ट डेफिनेशन होती है फैकल्टी की, उसमें अपने आप को नहीं कहता। हम लोग, मैं, गिलानी साहब, जमान साहब, वी आर जस्ट ट्रेंड ऑब्जर्वर्स। हम क्या करते हैं, आप लोग तो यहाँ पे आके पढ़ के आप लोग शायद आगे आपको नौकरी मिल जाए, आप चले जाएं। हम लोग यहीं पे बैठे हैं, हम लोगों ने ट्रेंड ऑब्जर्व करना है। हम लोगों ने देखना है कि यार अब ये सवाल आया, अब इस तरह से चेंज हो रहा है पैटर्न। हमने वो ट्रेंड आपको कन्वे कर देना है ताकि आपकी जो मेहनत है 50% रिड्यूस हो जाए। आपको हमने डायरेक्शन दिखा देनी है कि यार ये रास्ता है, इस तरह आपने चलना है। आपको हमने टूल्स दे देने हैं और आप उस पर इंशाल्लाह ताला चले। दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर। तो जो इसके पीछे जो जो बुनियादी जो विजन है, दैट इज टू प्रोवाइड यू अ जॉब, एंड दैट इज आई थिंक दैट इज सफिशिएंट इन फॉर अस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रूल्स जो मैंने आपको बात की है ना कि इधर रूल्स ही बदल जाते हैं, यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी काम आती है, मेहनत से ज्यादा आपकी स्ट्रेटेजी, और मेहनत भी इन द राइट डायरेक्शन। और वो आपको वही चीज, वही बंदा आपको बता सकता है जो कि खुद इस प्रोसेस से गुजरा। अब ये मेरा एक्सपीरियंस है, और शायद बाकियों का भी हो। हम लोगों ने कभी टीचर्स के पास चले जाना कि जी कोई फलां प्रोफेसर साहब है उधर, कभी उधर चले जाना, कभी इधर चले जाना। लेकिन जो असल जिस चीज का मतलब, मैंने भी कमीशन पास की है, तो जिस चीज का फायदा हुआ वो उनसे गाइडेंस का फायदा हुआ जो लोग खुद इस प्रोसेस से गुजरे हैं, जिन्होंने खुद कमीशन की मार खाई हुई है, जिन्होंने खुद इस रास्ते से गुजर के जो है कुछ अचीव किया। तो दैट इज द पॉइंट, वी आर ट्रेंड ऑब्जर्वर्स, not the faculty in the strict sense of the word. We are trend observers. We are here to give you the right and relevant piece of information so that you can fulfill your dream. अब यहाँ पे जो स्ट्रेटजी जो काम आएगी वो हमने आपको बताना है। अब आई डोंट नो कि शायद जो है यहाँ पे वो टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे, बट इट गिव्स मी सेटिस्फेक्शन कि हमने जो सिलेबस आपका डिजाइन किया है या जो लेक्चर प्लान आपका जिस तरह डिजाइन किया है, सम टाइम इट हैपन्स कि हमने 1-2 दिन पहले वो चीज़ पढ़ाई हो और वो पेपर में आ गई हो। जिस तरह अभी मैंने सर को कुछ दिनों पहले मैसेज किया कि सर मैं एक वॉलंटरी क्लास ले रहा हूँ। उस वॉलंटरी क्लास में हमने एक टॉपिक रखा अलेक्जेंडर द ग्रेट का, जो पाकिस्तान अफेयर्स का एक टॉपिक है, सॉरी इंडो पाक हिस्ट्री का है। और बिलीव मी 3-4 दिन बाद ये भी हो रहे हैं इंटरव्यू CSS के, उसने वो सवाल पूछ लिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कोई जिन है या मैं कोई मतलब कोई कहीं से जो है मुझे कोई जो है ऊपर से इल्हाम होता है। द ओनली थिंग इज वी आर द ट्रेंड ऑब्जर्वर। हमें पता है कि ये चीजें पूछी जा रही हैं, इसकी ज्यादा लाइकलीहुड है, हम फोकस करके वो कराते हैं। इससे इसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको मेहनत कम करनी पड़ती है, मेहनत टू द पॉइंट करनी पड़ती है। दैट इज इन ब्रीफ जो कि माय पार्ट ऑफ द डिस्कशन। अब मैं हैंड ओवर करता हूँ सर, ओवर टू यू। जी थैंक यू जैन साहब। जैन साहब ने आपको जैसे कि बताया कि माशाल्लाह जैन साहब फ्रॉम द पास्ट 7 years सर्विंग ऑन वेरियस गवर्नमेंट पोस्ट। और उसके साथ साथ मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं कि हमारे फैकल्टी में जैन साहब वो हैं जो माशाल्लाह आई थिंक अबव 70 to 80 एग्जाम खुद क्लियर कर चुके हैं। और ये गवर्नमेंट जॉब ऐसे चेंज करते हैं जिस तरह आप लोग प्राइवेट सेक्टर में सुनते हैं ना, अच्छी ऑफर आई तो दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया। ये इस तरह जो से सफ़र को जारी रखते हैं। और कभी SNGDL से SNGP, उसके बाद फिर FIA, उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, और फिर माशाल्लाह CSS। तो ये सारी जर्नी जो सी है ये उन तमाम प्रोसेस से गुजर के स्टेज पे पहुंचे हैं। तो खैर नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस you with Sir Zamanullah. Sir Zamanullah is teaching English from last 5 to 6 year to our CSS PMS student. इंशाल्लाह इसके बाद में हम इसको प्रॉपरली कंक्लूड करेंगे। अभी सर जमान जो से वो आपको स्पेसिफिकली इंग्लिश के बारे में बताएंगे
और सर जैन जो आपसे डिस्कशन कर रहे थे, ये हमारे स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं जो लास्ट बैचेस के, उनके रिव्यूज आपके सामने हैं कि इसी तरह जिस तरह आप आज हमारे पास आए हैं, जब वो आज से कुछ 6 महीने साल पहले आए थे और फिर वही चीज़ें जो उन्हें पढ़ाई थी वो पेपर में आई, तो वो किस तरह हमें उस चीज़ पे यू कैन से रिस्पॉन्स करते थे, क्या उनके फीडबैक्स थे। और एक चीज़ बच्चे यहाँ पे याद रखें कि हमारा जो असल मकसद है दैट इज टू मेक यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम इन सच अ वे कि आपकी जो एफर्ट है वो रिड्यूस हो जाए। मेरे साथ जितने भी फैकल्टी मेंबर यहाँ पे अटैच हैं, उनको जो बेसिक टास्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि हम हर दिन अपने बच्चे को इस मुताबिक प्रिपेयर करवाएं कि एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन जो पेपर में आने हैं उसके लिए वो प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इंग्लिश का है, जिस पे बात अब आपसे करेंगे सर जमान, और उसके बाद इंशाल्लाह हम इस सारे को कंक्लूड करेंगे कि ओवरऑल पैटर्न क्या है, चीज़ें क्या है, हमने उसे किस तरह कवर करना है। सो सर जमान, आर यू हियर नाउ? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। Shah Sahab, thank you so much for giving me time and sharing my experience regarding previous exams about CSS and PMS and all about that the questions that were asked about specifically in English, specifically in English exams. So today जो है मैं बात करना चाहूँगा स्पेसिफिकली वो है इंग्लिश का जो 50 मार्क्स का एक पोर्शन स्क्रीनिंग टेस्ट में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया FPSC ने। ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करेंगे ना हम लोग इधर? जी जी, मेन स्क्रीनिंग अच्छा टेस्ट सर, और साथ में हमारे वो स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिन्होंने ओके। सब इंस्पेक्टर पुलिस के लिए अप्लाई किया। दोनों के बैचेस अब शुरू होने जा रहे हैं, तो इकट्ठे ही हम मौजूद। So first of all, I will talk about the CSS screening test, and after that I will talk about the other exams that will be conducted by the PPSC and FPSC, such as sub inspector police, FIA, and all like that. So सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की CSS के हवाले से। जैसे कि आप लोगों ने सबने जो भी CSS स्क्रीनिंग टेस्ट में अपीयर होंगे इस बार, अब वो उन्होंने देखा होगा कि 50 मार्क्स की इंग्लिश है। सो अब 50 मार्क्स की जो डिवीजन है मैं वो आपको एक थोड़ी सी बता देता हूँ। 50 मार्क्स, आप अब ये जो मैं डिवीजन आपको बताने लगा हूँ इसको आप जो FPSC में 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है उसके अकॉर्डिंगली भी खुद से डिवाइड कर सकते हैं, और जो PPSC में एग्जाम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश का सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इंग्लिश में पूछता क्या है। ये एक बहुत ही गलत किस्म का आइडिया स्टूडेंट्स ने जनरेट किया हुआ है, डिफरेंट एकेडमीज ने या कुछ लोगों ने, कि इंग्लिश जो है वो टोटली बेस करती है आपकी वोकेबलरी के ऊपर। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं आप सारे के सारे पास्ट पेपर्स उठा के देख लें, इवन तहसीलदार के पेपर हुए हैं तो उस पेपर को भी अगर आप देखें तो उसमें से 80% जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश का। ठीक है, वो लैंग्वेज पूछी हुई है उसने। अब जो 20% दूसरे हैं उसमें उन्होंने वोकैब पूछ ली है या उन्होंने फ्रेजल वर्ब्स पूछ लिए हैं। तो वो जो 80% है आपने उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और वो 80% जो इंग्लिश का पोर्शन है वो आता है आपको उसके रूल्स पढ़ने से, उनकी प्रैक्टिस करने से, ज्यादा रीड आउट करने से। तो मैं बड़ा कंसाइसली बता देता हूँ कि उनमें आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो करनी है वो सारे पोर्शंस में से। सो सबसे पहले जी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश में 4 से 5 चीज़ें जो बुनियादी हैं, और जो कि एग्जामिनर कोई भी पेपर हो आया वो बोले इधर पंजाब पब्लिक वाले, सर्विस कमीशन वाले ले लें, फेडरल वाले ले लें, NTS हो या जितने भी टेस्टिंग एजेंसीज हैं, उनका क्राइटेरिया जो होता है वो 60% इंग्लिश, जितने भी नंबर की इंग्लिश हो उसमें से 60% जो है वो आपकी बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब उस बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले आपको टेंसेस आने चाहिए, आपको सारी हेल्पिंग वर्ब्स आने चाहिए उन टेंसेस के, आपने उनको अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स का आपको पता होना चाहिए, फिर नेगेटिव स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, एंड देन पैसिव वॉइस जो हैं टेंसेस के बाद वो आपको उनके रूल्स पता होने चाहिए, आप उनकी प्रैक्टिस की हो प्रॉपरली। ठीक है, उसके हेल्पिंग वर्ब्स का पता हो। थर्ड नंबर पे आती है नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी बोलते हैं। अब नरेशन के सारे रूल्स एंड देन उनकी प्रैक्टिस, ये बहुत कंपलसरी है आप सबके लिए, जितने भी लोगों ने वन पेपर में जाना है या इवन स्क्रीनिंग जो है CSS का, उसके लिए आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो ये 3 चीज़ों के बाद जो 4th नंबर पे है वो है करेक्शन के रूल्स।
जो बेसिक इंग्लिश की करेक्शन है उसके रूल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वो कोई तकरीबन 40 to 60 के पास पास बेसिक रूल्स हैं, वो आपने करने हैं। अब ये जो 5 चीज़ें हो गई हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश का। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर इन्हीं 5 चीज़ों के ऊपर है। अगर ये 5 चीज़ें आपको आती हैं तो आप इंग्लिश के 60% मार्क्स आप गेन कर सकते हैं इजीली, किसी भी पेपर में बैठ जाएं, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो आप वोकैब जितनी मर्जी याद कर लें, आप कभी भी उस लेवल पे नहीं जा सकते, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेन पोर्शन है वो प्रपोजिशंस का है, ठीक है। प्रपोजिशंस कोई राउंड अबाउट 1500 के करीब प्रपोजिशंस हैं जो कि बार बार रिपीट होती रहती हैं सीएसएस में, पीएमएस में, वन पेपर में। प्रपोजिशंस वही हैं, उनको बार बार पढ़ें। फिर उसके बाद ईडियम्स का एक पोर्शन है, देन उसके बाद फ्रेजल वर्ब का एक पोर्शन है, ठीक है जी। और उसके बाद एंड के ऊपर मैं वोकैब की बात लेके आता हूँ, क्योंकि वोकेबलरी जितनी भी हो, इवन इसमें से स्क्रीनिंग टेस्ट में भी जो 50 नंबर की है, इसमें मैक्सिमम भी उसने पूछ लिया 8 से 7, 6 से 8 या 6 to 10, इससे ज्यादा वोकैब नहीं पूछ सकता, इंक्लूडिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है। तो वो जो 40% है, एग्जामिनर ने वो 40% जो है वो आपकी बेसिक इंग्लिश ही चेक करनी है। अब ऑब्वियसली ये जितना भी स्क्रीनिंग टेस्ट रखा गया है, इसका यही पर्पज है कि स्टूडेंट्स की इंग्लिश को देखें। अब 50 नंबर 200 में से 50 मार्क्स सिर्फ इसी के हैं। जीके का बहुत कम पोर्शन रखा है उन्होंने, फिर उर्दू का पोर्शन रखा है, एनालिटिकल एबिलिटी का पोर्शन रखा है। तो इंग्लिश का जो पोर्शन इतना बड़ा रखा है, उसका बेसिक मकसद यही है कि स्टूडेंट्स की जो बेसिक स्ट्रक्चर की आप कह लें उनकी जो है, कितनी उनके पास एक्वेंटेंस है उसके साथ, ठीक है। मतलब उनको लैंग्वेज के बारे में हो नो कितनी है, तो उसके बारे में उनको एनालाइज किया जा सके। तो ये इंग्लिश का ये सारे का सारा पोर्शन जो है, ये 8 से 9 पोर्शंस बनते हैं इंग्लिश के। अच्छा, अब हम अगर ये बात करें कि इसको आपने करना किधर से है, तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आप में से जितने लोग उर्दू मीडियम बैकग्राउंड से हैं, उनको चाहिए कि वो टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर जो है बीए के लिए उसको कंसल्ट करें। जो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल है जिनका इंग्लिश था, वो हाई इसकी रेन एंड मार्टन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर को करें, ये 2 ग्रामर्स। अच्छा, बाकी जो चीज़ें करने के लिए वो एक किताब है ऑल अबाउट कम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो लिखी हुई है सैयद मुजफ्फर हुसैन बुखारी साहब ने। वो हमारे उस्ताद भी हैं, 2001 तक वो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे, और उसके बाद उन्होंने फिर ये किताब लिखी, और वो पढ़ा भी रहे हैं आजकल। पता नहीं पढ़ा रहे हैं, उनकी तबीयत थोड़ी सी जो है मतलब ठीक नहीं रहती, तो इसलिए मेरे ख्याल वो पढ़ा तो नहीं रहे, लेकिन उनकी वो जो बुक है ऑल अबाउट कम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो बहुत कंसाइसली और बड़ा ही उसको उन्होंने एरर फ्री किताब के तौर पे लिखा हुआ है। बाकी जो मार्केट्स में गाइड्स हैं, जैसे कारवान वालों की हो गई या किसी और की हो गई, उसमें मिस्टेक्स हैं। फॉर एग्जांपल एक किताब मेरी नज़र से गुजरी है, उसको मैंने देखा, उसमें बहुत मिस्टेक्स हैं, वो कारवान वालों की पब्लिश है, ठीक है। उसकी प्रूफ रीडिंग भी नहीं हुई हुई। तो ये जो किताब है मुजफ्फर हुसैन बुखारी साहब की, इसमें आपको प्रपोजिशन भी मिलेंगी, ईडियम्स भी मिलेंगे, करेक्शन के रूल्स भी बड़ा उन्होंने अच्छे तरीके से एलेबोरेट किए हुए हैं, फिर एग्जांपल्स के साथ उनको बताया भी गया है स्टूडेंट्स को। तो ये जो है एक किताब आप ले लें, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि जी वो क्यों ना लें। वो मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि वो किताब 60s में लिखी गई थी, 60s 70s में, उसके बाद वो किताब आज तक प्रूफ ही नहीं हो सकी, ना उसकी प्रूफ रीडिंग हुई है, ना उसमें कोई मजीद डाटा इंक्लूड किया गया है, उसमें एग्जाम्पल्स भी बहुत पुरानी हैं। तो हमारी जो मेंटल अप्रोच है वो उसके साथ मैच नहीं होती, उसकी फिर वो प्रिंटिंग की जो राइटिंग है वो भी पुरानी है, ओल्ड ओल्ड स्टाइल की है। तो इसलिए ये जो किताब है मुजफ्फर बुखारी साहब वाली, ये लें, साथ में वो जो मैंने आपको ग्रामर के लिए जो 2 बुक्स रिकमेंड की हैं वो ले लें। तो इससे काफ़ी हद तक आपके इंशाल्लाह इंग्लिश के जो हैं इश्यूज वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जी कोई जी थैंक क्वेश्चन यू जी। इंग्लिश के हवाले से तो वो पूछ लें। जी बेटा, अब तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, आप फिर इसको फॉर्मली जो भी आपको एक दो ओपिनियन मिले हैं, वन अबाउट इंग्लिश एंड अदर अबाउट जनरल एग्जाम, उसको अभी हम जो से कंक्लूड करेंगे, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम आपको बताएंगे सिलेबस क्या है और करना क्या है और कहाँ से करना है। अब तक कोई क्वेश्चन? ये ओप्पो जी A3 आपने हैंड रेज इंग्लिश के किया हुआ। हवाले से कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन जी, चलें जी, गुड। तो खैर, आई एम सैयद उवैस किलानी एंड आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन।
And before starting this institution, I worked for 7 to 8 years on various national and international projects. My first assignment was with United Nations on agriculture related project of Africa, Ghana, as a project coordinator. And if we're talking about my background, so I did my honors from GC University Lahore, then MPhil from Lahore School of Management in Project Management, and then PhD in progress, that is in basically public policy. So this is short introduction, and in recent 6 to 7 years जिसमें various national international projects में जो उनसे सर्व किया. My last assignment was as a project director of data repository project of State Bank, and beside this, under this journey of various assignments, हमें तकरीबन कोई 500 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे हायर किया है, और वो इंटरव्यू से भी गुजरे हैं, टेस्ट स्टेज से भी गुजरे हैं. उसके बाद इस इदारे को स्टार्ट किए हमें 3 साल हो चुके हैं. अल्हम्दुलिल्लाह 130 प्लस स्टूडेंट हमारे वो हैं जो इस हमारे प्लेटफॉर्म से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं. और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो कि हमें जब यूएन की फर्स्ट असाइनमेंट थी तो हमारा जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर उसने कही थी, ही सेड योर हाफ वर्क इज डन व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर वर्क. बेटा आपका आधा काम पूरा हो जाता है जब आप काम को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. देखें आप तमाम लोग, चाहे मेरे सामने इस टाइम स्क्रीनिंग टेस्ट के स्टूडेंट बैठे हों या वो जो एफपीएससी पीपीएससी के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम देना चाह रहे हों, आप तमाम लोग वो हैं जो 16 साल तालीम रखते हैं मिनिमम, और इस 16 साल में आपने बहुत कुछ पढ़ा है. यहाँ पे इस 16 साल को चेक करने के लिए दे आर गोइंग टू गिव यू एन एमसीक्यू बेस्ड पेपर जिसके अंदर हर पोर्शन जो है वो 20 to 40 मार्क्स का है. ठीक है, अगर आप इसको ओवरऑल अगर बात करें तो इन दिस गैलेक्सी ऑफ वन पेपर एग्जाम बेसिकली एग्जामिनर इज गोइंग टू असेस यू फ्रॉम 7 to 8 सब्जेक्ट्स. और हो सकता है कि किसी एक सब्जेक्ट में आप बुरे हो, लाइक से मैथ है, जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, उनका मैथ से पाला नहीं पड़ा, हो सकता है उनकी मैथ बहुत वीक हो. अगर मैथ में नंबर कम है और इस्लामिक स्टडी में आपने टॉप कर ली है तो इट मीन्स यू आर फेल. ठीक है, आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन होना पड़ता है. ठीक है, आपको ये समझना पड़ता है कि अगर ये आपको 9 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपने कवर अप करना है तो इट मीन्स कि वो 9 के 9 ही हमने कवर अप करने हैं, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट भी ऐसा नहीं जिसको हम बीच में से छोड़ दें. और इन 9 सब्जेक्ट को कवर करने में 2 सब्जेक्ट आपके मेरे पास होंगे, दैट इज योर करंट अफेयर जिसके अंदर वर्ल्ड अफेयर जीके सब कुछ आ जाता है, एंड सेकंड इज योर इस्लामिक स्टडी. सिमिलरली पाक अफेयर और पाकिस्तान ज्योग्राफी वो आपको जैन साहब पढ़ाएंगे जिनका भी आपका साथ सेशन हुआ है. इंग्लिश आपको जमान साहब पढ़ाएंगे. अदर देन दैट जो मैथ्स है और कंप्यूटर साइंस है, इसके लिए हमने जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उनको साथ इंगेज किया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वो है कि जिसमें स्टूडेंट्स की नॉर्मली अगर बेस ना हो तो उनको बिल्कुल एबीसी से बताना पड़ता है. और जो हमारी यहाँ सबसे एक अच्छी बात है, वी ऑल आर गोइंग टू ट्रीट यू इक्वली. हम हर सब्जेक्ट को बिल्कुल बेस से ग्रास रूट लेवल से उठाएंगे, ताकि अगर आपको उसमें नॉलेज नहीं भी है और अगर है और वो ना होने के बराबर है तो आप इक्वली उस पर एक ही स्टेज पे क्लियर हो जाएं. एग्जाम आपका, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यूज बेस्ड 100 मार्क्स एग्जाम है, और उसके लिए आपका जो सिलेबस ब्रेकअप है, यानी कि जो सब्जेक्ट्स को कवर अप करें तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, वो ये है. आपने पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, ईडीएस, जीके, करंट अफेयर, उर्दू, जनरल एबिलिटी, मैथ्स एंड जनरल रीजनिंग एंड इंग्लिश, इन चीज़ों को कवर अप करना है. और इसको कवर अप करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि जो एग्जामिनर अप्रोच है, जो मेथोडोलॉजी एग्जामिनर फॉलो करता है पेपर बनाते हुए, हम वो फॉलो करें ताकि आपको तैयार ही वो करवाया जाए जो पेपर में आ रहा हो. देखिए देयर आर फ्यू ट्रेंड्स, जस्ट लाइक अगर आप देखें कि आपकी सब्जेक्ट की आउटलाइंस क्या है, देयर आर फ्यू इन्फॉर्मेशन, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जिससे एग्जामिनर पूछ रहा है. अगर आप मेरे सब्जेक्ट की बात करें, करंट अफेयर की बात कर लें, तो करंट अफेयर का अगर 20 मार्क्स का आपके पेपर में पोर्शन है, आपको सिलेबस में बताया गया है, तो इट मीन्स कि 20 मार्क्स में उसने सिर्फ ये नहीं करना कि आपने अखबार में जो करंट अफेयर पढ़ा वो आ जाना, या उसने ये नहीं करना कि आपने पाक एमसीक्यू से एमसीक्यू को देख लिया तो वो पेपर में आ जाना है. एग्जामिनर ने इस 20 मार्क्स को फर्दर डिवाइड करना है 2 कैटेगरीज में. वन विल बी योर प्रेजेंट हैपनिंग, अदर विल बी
योर जीके जनरल नॉलेज जो हो चुका है उसको फर्दर 3 टियर्स में उसने लेके आना है, नेशनल अफेयर, रीजनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर। ठीक है, यानी कि अगर करंट अफेयर 20 मार्क्स का लिखा है तो उसका मतलब ये है कि 10 नंबर जो उनसे आपके जो हो गुजरा है उससे आने, और 10 नंबर जो प्रेजेंट चल रहा है उससे आना है, जिसको फर्दर उसने उन 10 को अगर डिवाइड करें तो 3 नंबर के नेशनल अफेयर पूछेगा। नेशनल अफेयर मीन जस्ट लाइक आपका इस टाइम जो से इंटीरियर मिनिस्टर कौन है, ठीक है, आपका प्रेजेंट जो बजट है वो कितने का अनाउंस हुआ है, उसमें जो से अगर देखा जाए तो बजट डेफिसिट कितना है। अगर रीजनल की बात की जाए तो एज कश्मीर इशू जो वो आपका रीजनल इशू भी है, नेशनल इशू भी, उस पर भी। इंटरनेशनल की बात की जाए तो रिपीटेड क्वेश्चन आप पेपर में देखते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसका जो प्रेसिडेंशियल हायरार्की में जो प्रेसिडेंट है उसका नंबर क्या है। तो इस तरह के सवाल आते हैं, और इसके लिए तैयारी करने में जो बच्चा मार खाता है, जो सबसे ज्यादा हमने ऑब्जर्व किया था आज से कुछ 10-12 साल पहले जब हम आप लोगों की स्टेज पे थे, जब हमने गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करना था और उस चीज को सोच रहे थे कि कहाँ से हम इस सेक्टर में इन हो, तो सबसे बड़ी जो गलती होती है वो ये होती है कि आप एक चीज को उठाते हैं, उसको पढ़ते पढ़ते महीना खत्म हो जाता है, 2 महीने खत्म हो जाते हैं, और समझते हैं कि मैंने 2 महीने पढ़ा और मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपने उन तमाम पार्ट्स का टाइम डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द वेटेज, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू व्हाट एग्जामिनर वांट टू आस्क यू। सो व्हाट एट दिस स्टेज रिक्वायर्ड इज फर्स्ट ये सीखें कि एग्जामिनर आपसे चाह क्या रहा है, उसके मुताबिक अपने आप को जो से ऑर्गेनाइज करें, उसके मुताबिक चीजों को कवर अप करना है, और उसी के मुताबिक हमने आपकी आउटलाइन डिजाइन की है। ये आउटलाइन आपकी तमाम सब्जेक्ट की आपके सामने है। जनरल नॉलेज की ये आउटलाइन है जो हम आगे 45 डेज में आपको करवाने जा रहे हैं। ये करंट अफेयर की आउटलाइन है, ठीक है, और ये सारा डाटा हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे और वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में इंशाल्लाह। अब आपकी एक क्लास होगी, ट्रायल क्लास, प्रोबेबली आज ही आपकी जो सी है वो 9:15 बजे 9:15 PM पे क्लास, ट्रायल क्लास रखते हैं, ताकि जो लोग सेमिनार में नहीं भी हैं वो भी ट्रायल क्लास में शामिल हो जाएं, और उसके बाद कल से फिर आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएं। तो इंशाल्लाह इसी तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने तमाम सब्जेक्ट को डिवाइड किया है। हमने उन ट्रेंड्स को ऑब्जर्व किया है, जिस ट्रेंड्स पे FPSC PPSC पेपर डिजाइन करता है, वो कौन से रिपीटेड क्वेश्चन उठाता है। जस्ट लाइक एक छोटी सी बात है, अगर आप इसमें उठा के देखें, जो आपका प्रेजेंट एक जनरल नॉलेज चल रहा है, आपको पता है कि जी कंट्रीज के कैपिटल पूछे जाते हैं, तो यू कांट मेमोराइज 196 कंट्रीज कैपिटल। अगर करेंगे तो आप बेवकूफ होंगे, क्योंकि 196 कंट्रीज के कैपिटल उसने आपसे पूछने ही नहीं। ठीक है, उठा के देखें पेपर, देयर आर स्पेसिफिक सेट जहां से वो क्वेश्चन उठा रहा है। ठीक है, यानी कि ईस्ट यूरोप, अगर मैप पे आप देखें ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के वो कैपिटल आपसे पूछ रहा है। आप देखें सेंट्रल एशियन कंट्रीज के वो कैपिटल आपसे पूछ रहा है, लीस्ट डेवलप्ड अफ्रीकन कंट्रीज के कैपिटल पूछ रहा है। तो दीज आर अराउंड 29 to 30 कंट्रीज। तो देयर आर 2 वेज, अगर आपके पास राइट गाइडेंस है, राइट मेंटोरशिप है, तो आपकी एफर्ट ये रिड्यूस हो जानी कि आपको 196 की जगह 30 के कैपिटल याद करने। और दूसरा तरीका ये कि आप खुद एग्जाम में फेल होते होते कुछ 40-50 एग्जाम फेलियर के बाद आपको अंदाजा होगा कि एग्जामिनर पेपर ऐसे बनाता है, उसके मुताबिक हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, टारगेटेड वे में ऑन स्पॉट ऑन पॉइंट प्रिपरेशन करनी है। यू हैव टू गो फॉर द वे ऑफ हार्ड वर्क बट विद स्मार्ट अप्रोच। अगर हार्ड वर्क करना है स्मार्ट अप्रोच के साथ, फिर आप कामयाब होंगे। अदरवाइज आप सिर्फ यही कहें कि जी मैं किताब एक गाइड खरीद के सर के साइड पे रख लूं और वो गाइड मेरे दिमाग में कुछ डालेगी, तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है, ये अब प्रेजेंट करंट अफेयर है, उनके क्वेश्चन आपके पास हैं, ये सारा कुछ आपको इन अ फॉर्म ऑफ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारे जो सेशंस हैं, जिस तरह के आपको पता है वो ऑन कैंपस भी स्टार्ट होने जा रहे हैं, ऑनलाइन भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑनलाइन हम लास्ट जून से अल्हम्दुलिल्लाह रन आउट कर रहे हैं, इट्स अबाउट 1.5 ईयर, और इसमें हमारा ये 34th बैच है जो आप लोगों का बनने जा रहा है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने तब तक ऑनलाइन स्टार्ट नहीं किया जब तक हमने फुल प्रूफ सेटअप ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं करवा दिया जो कि ऑनलाइन और कैंपस बराबर हो। आपका जिस तरह भी सेमिनार ग्रुप बना है, इसी तरह आपका एक ग्रुप बनेगा जो क्लास ग्रुप होगा, अभी वो भी आपको दिखाते हैं। उसके अंदर आपको सारे क्लास लेक्चर की स्लाइड्स मिलेंगी, रिकॉर्डिंग मिलेंगी, बिकॉज इट्स अ टेक्नोलॉजी। हो सकता है कभी आपकी तरफ से कोई नेट इशू हो या हमारी तरफ से हो को आपको रिकॉर्डिंग मिस हो, क्लास मिस हो जाए, तो आपको अगर हमारी तरफ से होगा तो क्लास दोबारा ऑर्गेनाइज की जाएगी, अगर आपकी तरफ से होगा तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, ताकि आप उसे सुन के, और जो क्लास ग्रुप है आपका व्हाट्सएप पे, उस पर आपकी फैकल्टी भी होगी, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स भी वहाँ पे होंगे, और आप लोग भी हमारे साथ होंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली अपने टीचर से कंसल्ट करके उसका जो इशू है उसे रिजॉल्व करवाया जाए। ठीक है, और उसके बाद इंडिविजुअल गाइडेंस एंड असेसमेंट, जिसमें आपके कोई हो सकता है किसी का कोई एक पोर्शन वीक हो, कोई एक पोर्शन बहुत अच्छा हो, तो उसमें हम इंडिविजुअल गाइडेंस से इंशाल्लाह ताला आपके उस सब्जेक्ट को अपलिफ्ट करेंगे। उसके साथ साथ नोट्स आपको सारे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे इन सॉफ्ट फॉर्म। जो हार्ड कॉपी लेना चाहेंगे उन्हें विद
फ्री डिलीवरी, उसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो पे करके वो मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये तमाम डाटा आपके लिए कंपाइल किया गया है और ये तमाम डाटा जो है बेसिकली ये डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल किया गया। इवन कि जो आपके मंथली एमसीक्यूज होते हैं उनको उस पर भी हमारी टीम एक मुस्तकिल काम कर रही होती है जो हर मंथ आपको डाटा प्रोवाइड कर रही होती है। इसके साथ साथ ये आपका टाइम टेबल आपके सामने है। आज आपकी फ्री सेमिनार ओरिएंटेशन थी, कल आपकी ट्रायल क्लास मेंशन्ड है और फ्राइडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। रेगुलर क्लासेस मींस आज से ही काम शुरू है। कल जो हमसे पहली क्लास जरा डेमो क्लास है जिसमें सबको अलाउ किया जाएगा। उसके बाद ये कि जो एनरोल्ड स्टूडेंट है वो हमारे एक सेपरेट एक ग्रुप होता है क्लास ग्रुप, उसमें उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो और एक है हमारा जो फी डिटेल्स है बेटा वो तो मुझे नहीं पता, मिस बतूरी आपको बताएंगी। ये उनके नंबर है जो आपसे कोऑर्डिनेट ग्रुप में कर रहे हैं। एडमिशन फॉर्म आप लोगों ने फिल करने हैं, उसके बाद जो फी सबमिशन प्रोसेस है वो भी मिस बतूल आपको बताएंगी। हाँ, एक चीज मैं मेंशन कर दूं, अगर आपका एक दफा ये प्रिपरेशन के बाद हमारे साथ एग्जाम क्लियर नहीं होता या एक दफा प्रिपरेशन के बाद जिस तरह अभी जो सा आपका आना है CSS का, इसके अंदर आपके पास अभी 3 मंथ्स हैं तकरीबन, तो ये सेशन तो आपका 45 डेज का है। इसके बाद जो लोग दोबारा रिवीजन करना चाहते हैं दे आर नॉट गोइंग टू पे फी अगेन, दे विल जस्ट पे एन एनरोलमेंट फी और न्यू बैच में ऐड हो जाएंगे ताकि उनकी दोबारा रिवीजन भी होती रहे। तो इट्स ऑल अबाउट दिस एग्जाम। नाउ इट्स योर टर्न। कोई क्वेश्चन है, कुछ और पूछना चाहते हैं तो यू मे आस्क नाउ। सबसे बड़ा जो कंसर्न नोट्स का होता है, जिस तरह सर जमान आपको बुक्स के बारे में बता रहे थे, इन तमाम बुक्स से डाटा ऑब्स्ट्रैक्ट करके आपके लिए जो नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं ये आपके सामने इस टाइम ये 1 पेपर के नोट्स हैं। ठीक है, 1 पेपर मीन MCQ बेस्ड पेपर। इसमें जो CSS स्क्रीनिंग वाले होंगे उन्हें भी तमाम डाटा प्रोवाइड किया जाएगा और जो ये पंजाब पुलिस के और PPSC के किसी भी एग्जाम के लिए आ रहे हैं उन्हें भी तमाम डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। जी, सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन के बारे में बताऊं तो सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन में अगर बेटा आपका बेसिक वेटेज देखा जाए जो उन्होंने आपको पूछना है वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो बेटा डेरा टोटल 9 सब्जेक्ट जिनको आपने प्रिपेयर करना है और बेसिक जो डिफरेंस होगा वो अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड जो डिफिकल्टी लेवल होता है उसका डिफरेंट होता है। ये हमारा जो उनसे बेसिक सिलेबस है जिसको हम सब इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं और इस सिलेबस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप सबको जो जिसमें मार्क आते हैं या करंट अफेयर और या इंग्लिश है, तो इंशाल्लाह हमने बहुत अच्छी तरह आपके इस कोर्स को डिज़ाइन आउट किया है और इन पैरामीटर्स में सारा डाटा मैंने आपसे शेयर किया है, उसके मुताबिक आपको इंशाल्लाह प्रिपेयर किया जाएगा और वही कल से आप सबकी क्लासेस स्टार्ट है। आप लोग अब अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई बोल के पूछना चाह रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में GD11 बेटा ये सारी जॉब्स के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक मार्केट से कोई आउटडेटेड गाइड लेने की जरूरत नहीं है। इस 45 डे सेशन में हमने आपको खुद ही डाटा प्रोवाइड करना है। हमने आपको किताबें नहीं बेचनी, हमने वो सारा डाटा आपके लिए पहले ऑर्गेनाइज किया हुआ। इवन के जमान साहब जो आपको इंग्लिश के बुक्स बता रहे थे वो भी डाटा सारा आपके लिए यहाँ तैयार है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको मार्केट से फिर आउटडेटेड एक एक चीज के लिए बुक लेने की जरूरत ही क्या है। ये लें, ये सारा डाटा पड़ा हुआ। जी, और कोई सवाल किसी का? सर ये PPSC और CSS दोनों का जो सेशन 45 डे का ही होगा? ये दोनों 45 डेज का होगा। बिल्कुल बेटा, ये सारा तैयार करवाना है जुनैरा एंड हैदर। ये जितने भी आपके पार्ट्स हैं उसके मुताबिक वही आपको बता रहा हूँ कि आपके जॉब रिलेटेड आपको जो सिलेबस डिवीजन है उसके मुताबिक आपकी क्लासेस को जो है वो किया जाएगा। अब देखिए इसमें जो आप बता रहे हैं कंप्यूटर 40%, इंग्लिश 40%, GK 20%, इट मीन्स कि वही इंग्लिश तो आपकी उसी लेवल पे आ गई। कंप्यूटर का जो आपका कंप्लीट कोर्स है मैं अभी आपको पहले दिखा चुका हूँ, वही कोर्स है। और होगा क्या कि इसके साथ साथ जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर जो GK आपके पास लिखा हुआ है, GK में बेसिकली 3 सब्जेक्ट आते हैं जिसको मैंने करंट अफेयर कहा है। वो करंट अफेयर, पाक अफेयर और EDS, ये 3 सब्जेक्ट हैं जो GK में आते हैं। तो ये सब इंशाल्लाह आपको कवर करवाया जाना। मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। ठहरे, यहाँ पे आपके कंप्यूटर की आउटलाइन आ गई, ये कंप्यूटर की आउटलाइन है। इंशाल्लाह ये भी आपको फ्रॉम द बेस सारा प्रिपेयर करवाया जाएगा। सर अगर कोई बच्चा नहीं ले सकता तो उसे वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी क्लास? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो साथ रेगुलर क्लासेस की प्रोवाइड की जा रही होती हैं। और जवेद बेटा टाइमिंग जो ऑनलाइन की वो हमने रखी 9:15 PM to 10:15 PM डेली।
उसमें ये कि जो जॉबियंस होते हैं उनको भी एडवांटेज होता है कि उस टाइम इजीली सब अवेलेबल होते हैं। वो पुराना स्टूडेंट हमारा है जो भी आपसे पहले यहाँ पे एनरोल हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने लास्ट वीक एडमिशन ले लिया था। मैं देखता हूँ अगर आप में से कोई मुझे उनका नाम नजर यहाँ पे आ रहा हो। उनकी सर क्लास है सब। जी जी। पीपीएससी का तो अगर एक दफा नहीं होता, जैसे DD11 का भी भाई ने पूछा, तो उसका नहीं होता, तो उसके अलावा अगर और कोई जॉब होगी तो दोबारा आके जो सेशन हाँ ज्वाइन हाँ करना। बेटा, हमारा जो बेसिक कोर्स है ना वो अगर आप देखें तो आपको इस लेवल प्रिपेयर कर रहे हैं कि उसमें तमाम जॉब टारगेट हो रहे हैं। तो अगर आप किसी एक स्पेसिफिक यानी पुलिस के लिए आपने ज्वाइन किया है, वो नहीं होता, तो नो वरी कि आपने जो अगर दोबारा उसको रिवाइज कर रहे हैं तो आपको पूरा कोर्स वही पढ़ाया जाएगा और जो भी गवर्नमेंट जॉब आ रही है वो टारगेट की जाएगी। जी अली बास बेटा, क्लास मिस हो जाए तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ये भी वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी आपको बल्कि व्हाट्सएप वो दिखा भी देता हूँ जो आपसे पहले बैच शुरू हुआ है कि किस तरह ये हम लोग काम कर रहे होते हैं। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने तब तक ऑनलाइन सेटअप लॉन्च ही नहीं किया जब तक हमने इसको ऑन कैंपस के बराबर नहीं कर लिया। ठीक है, देखें टेक्नोलॉजी आपकी तरफ से कोई मिस हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजिकल फेलियर हो सकता है, तो उसमें आपको जब तक रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो आपको कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो रिकॉर्डिंग एक्सेस हम लोग देते हैं, अपने जो स्टूडेंट है उनको एक्सेस दी जाती है बाकायदा तौर पे। वो सिर्फ स्टूडेंट ही फिर जौन से वो रिकॉर्डेड लेक्चर जौन से वो ले सकते हैं। ये देखें जी, जो आप रिकॉर्डिंग्स के बारे में वरीड है कि ये किस तरह आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये देखें जी, ये हमारे जो विजन एकेडमी ग्रुप्स हैं उन सब में मैं खुद भी मौजूद हूँ। ये व्हाट्सएप चैट मैंने खोली है आपको दिखाने के लिए। ये देखें, ये आपसे पहले जो लास्ट वीक लोग एडमिशन ले चुके हैं उनका ग्रुप है। ये कल उनका वीकली टेस्ट था, वो शेयर किया गया। ये क्लास लेक्चर है, जिस जब आपको क्लास मिस हो या ना हो, डेली जो आपके कोऑर्डिनेटर में जो कोऑर्डिनेटर 2 हैं शान, जिनका आपको मैसेज भी आया है, इनका काम है क्लास में लिंक भेजना, वीकली टाइम टेबल भेजना। और यहाँ पे ये देखें, आपके क्लासेस के लिंक भी आपको मिलेंगे और नोट्स भी मिलेंगे। देख रहे हैं, ये देखें क्लास हुई, क्लास के साथ ही उसको आपको यहाँ पे लिंक भेज दिया गया। ठीक है, ये वही है जो इनको एक्सेस दी होती है, फिर स्टूडेंट्स को वो यहाँ से देख सकते हैं। फिर जो हमारे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। इनकी फर्स्ट क्लास देखते हैं, पता चल जाएगा यहाँ पे। ये देखते हैं जब ये बैच शुरू हुआ किस तरह उनमें नोट्स प्रोवाइड किए गए। ये यहाँ पे बैच देखने स्टार्ट हुआ है इस तरह ने, फिर टाइम टेबल, नोट्स, ये पहले लेक्चर का लिंक गया। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, साथ आपके कोऑर्डिनेटर होते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है, ये अब आपके सामने है, जो स्टूडेंट से पूछा गया उनके क्या रिस्पॉन्स है क्लासेस के बारे में। तो इस तरह हम लोग काम कर रहे होते हैं। बेटा वीक में 6 डेज जो से वो आपकी क्लासेस हैं। 6 में से 5 डेज क्लास, 1 डे टेस्ट, वीकली टेस्ट। और उसके साथ साथ आपका एक दिन ऑफ होगा। हैदर बेटा, आप स्क्रीन नजर आ रही है? आई थिंक स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको ये? यस सर। जी बेटा, और किसी का कोई सवाल? टाइम टेबल बेटा आपको वीकली प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल हर वीक का टाइम टेबल होता है। और उसमें आपकी जितनी क्लासेस होती हैं वो हमने बेसिकली आपके कोर्स को डिवाइड किया होता है अकॉर्डिंग टू योर वेटेज। उसके मुताबिक आपकी क्लासेस होती हैं और उसी के मुताबिक आपको करवाया जाता है। और कोई सवाल किसी का? अरे बस एक आर की अभी क्लास आपकी मेरे साथ होगी ना, अभी ट्रायल क्लास तो होनी है। अभी कोई पुराना स्टूडेंट होता ना जो पहले आपसे जिनकी अभी क्लास है, वो आपको बताता है 1 घंटे में स्टूडेंट कहते हैं कि सर आज के लिए इतना ही काफी, ये हम हजम कर लें, फिर अगली क्लास होगी। तो ये बेफिक्र नहीं, वो हमारा काम है, कवर करवाना हमारा काम है, उसमें आपने टेंशन नहीं लेना। सर अगर मैनुअल क्लास, तो मैनुअल क्लास भी होती है आपकी अकेडमी की? यार ये ऑटोमेटिक और मैनुअल क्लासेस नहीं, क्लास तो क्लास होती है, ऑनलाइन और ऑन कैंपस होती है। तो ऑन कैंपस क्लासेस भी होती हैं बेटा। सर किस जगह? कैंपस हमारे 2 हैं, एक गुलबर्ग में और एक जॉर्ज टाउन लाहौर में। अच्छा जी, ऑन कैंपस रेजिडेंट्स की सहूलत
जवेद ऑन कैंपस जो उनसे हॉस्टल तो वहाँ मौजूद है, लेकिन आई सजेस्ट पर्सनली, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने सिर्फ ये तैयारी करने के लिए लाहौर आना है ना, तो पहले ऑनलाइन क्लासेस लेके देखो। इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि आप बेफिक्र रहें, जो कुछ यहाँ ऑन कैंपस प्रोवाइड किया जाएगा सेम उसी तरह आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा होगा। बल्कि अगर मुझसे पूछा तो मैं कहूँगा ऑनलाइन वाले ऑन कैंपस से बेहतर रहते हैं। एक तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप में फैकल्टी साथ मौजूद होती है, कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह कुछ समझ ना आ रही हो, तो यू ऑल आर ऑलवेज इन टच विद अस, ठीक है। तो वो चीजें जो सी वो आपको एक, क्योंकि हमने इसको स्टार्ट ही इस नीयत से किया है कि जो स्टूडेंट इस तरह के जो अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं आ सकते, तो हम उनको बेस से स्टार्ट करवाएं, उनके लिए हर चीज इजीली अवेलेबल हो। क्योंकि हम खुद जो उनसे अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल बिलोंग फ्रॉम वेल सेटल्ड बैकग्राउंड एंड जॉब्स, और उसमें हमें तो ऐसे जरूरत ही कोई नहीं थी। इसके लिए हमारी बेसिक जो फीचर है वही ये है कि हमने इस टारगेट के साथ स्टार्ट किया है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको जो सा इस चीज के साथ पैचअप इस तरह करवाया जाए कि उनकी कोई कमी ना रहे उनसे जो हमारे पास उन कैंपस आ रहे हो। इंट्रोडक्टरी लेक्चर बिल्कुल नुमान, अभी आपका लेक्चर एक है जो ये क्लास भी रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको, जब ये सेमिनार हुआ है। और 9:15 पे आप लोगों के साथ एक ट्रायल क्लास है जो कल होगी आपके, जैसे जो टाइम टेबल मेंशन है, ठीक है, वो कल की क्लास आप लोग फ्री ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यूट्यूब पे भी हैं, सैरिश भी हमारी कोऑर्डिनेटर यहाँ पे मौजूद है। यूट्यूब पे आप हमारा जो चैनल है VNCSS नेटवर्क, वहाँ देखें तो वहाँ भी हमने जो सी इंट्रोडक्टरी क्लासेस होती हैं जो फ्री फॉर ऑल होती हैं, वो इंट्रोडक्टरी क्लास रखी हुई है। बाकी इन डिटेल क्लासेस तो भैया चलती रही। और किसी का कोई क्वेश्चन जी? कोई चीज समझ ना आई हो सिलेबस से रिलेटेड, किसी जॉब से रिलेटेड कोई सवाल हो? बेटा नोट सारे ही प्रोवाइड किए जाएंगे, मैंने जिस तरह पहले आपको मेंशन किया, उसमें पास्ट पेपर भी सॉल्व आपको दिए जाएंगे, ठीक है। मुख्तलिफ पेपर्स होते हैं, टेस्ट जो से वो आपके मॉक टेस्ट जो से वीकली भी होते हैं, और एंड पे फिर आपका फाइनल मॉक टेस्ट भी होता है। तो इंशाल्लाह बेफिक्र रहें, ये हमारा काम है कि हमने आपको हर तरह से ऐसे ग्रिल अप करना है कि जब आप पेपर में बैठें तो कोई चीज़ आपके लिए नई नहीं होगी। और कुछ बच्चों में ये फेलियर का डर बहुत होता है, वो स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन वो कहते हैं यार क्या करना है, लोगों ने पैसे दे के हो जाना है, हमने तो होना नहीं है। नहीं बेटा नहीं, पैसे देने वाला जो से आप, खैर ऐसा तो नहीं कि आप सारी पैसे दे के हो रहे होते हैं। हमारे स्टूडेंट आपके सामने हैं, जिन लोगों ने इस सबको क्लियर किया है वो भी आपके सामने है। और सिलेबस पूछ रहे हैं जी इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। तो कोई ऐसा ये बात जेन से निकाल दें कि लोगों ने सिर्फ पैसे दे के होना होता है। ठीक है, कोई ब्लैक शीप्स को एक दो होती हैं बीच में, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही नहीं होती, होती हैं वो भी बीच में, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सारे पैसे देने वाले ही होते हैं। सारे बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते बेटा। ये बेटा बेसिक सिलेबस है आपका, इसमें से जो सब्जेक्ट वो आपसे मांगेगा वो इसी में से होंगे, इससे बाहर कोई नहीं होते। तो हमने ये सारे आपका कोर्स डिजाइन में आपके सारे सब्जेक्ट ऐड ऑन किए हैं, ताकि आप एक अगर जॉब के लिए आए भी हैं तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ के आप इंशाल्लाह अजीज वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे उन तमाम जॉब्स के लिए। FIA में बेटा, FIA में एक हमारा जो FIA एक्ट है वो हम सेपरेट करवाते होते हैं, क्योंकि उससे लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ कि वो एक स्मॉल एक लेक्चर में से 10 सवाल निकल आए पेपर में, तो वो एक एक्स्ट्रा करवाते हैं। बाकी जो बेसिक है वो मोशन बेटा ये सेम ही है जो आपके सामने है। जैन साहब खुद जॉन से भी जो आपसे फैकल्टी मेंबर हमारे बात करते रहे, वो खुद भी असिस्टेंट डायरेक्टर FIA क्लियर कर चुके हुए हैं, इंटरव्यू भी उनका हो गया, और इस टाइम वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स हेड ऑफिस लाहौर पोस्टेड है। CSS 2020 भी उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ। और सवाल जी, सिलेबस आपके सामने है। सिलेबस मोशन एक्ट वो कहते तो नहीं है, लेकिन जब उन्होंने जीके मेंशन कर दिया होता है ना, तब थोड़ा सा एक डाउट रहता है कि जीके अगर वो कोर्स रिलेटेड जीके पूछ लें तो देयर इज अ चांस कि वो कोर्स रिलेटेड जीके आपका FIA एक्ट के बेसिक, मतलब वो एक्ट मीन को लीगल को लंबा चौड़ा नहीं, बल्कि मैं दिखा ही देता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे आपके जेहन में। तो उसमें वो एक्ट से मुराद ये नहीं कि आपने को लंबी चौड़ी उनकी सारी पढ़ना है कि वो किस तरह काम करते हैं क्या करते हैं। जो FIA की बेसिस है बेटा, वो तो फिर हमें पता होनी चाहिए ना, वो तो नॉलेज में भी आ सकता है। किधर गया FIA, ये आ गया जी FIA। ये सर जो आपने पहले दिखाया ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का था सिलेबस? इंटेलिजेंस ब्यूरो का सिलेबस बेटा, इसमें से सबसे जो डिफिकल्ट सिलेबस आया है आज तक वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। वो होता है 200 मार्क्स का बेसिक सिलेबस, सारों का ये होती है। देखिए बेटा, अब ये बेसिक MCQs है,
ठीक है, तो इंशाल्लाह इस तरह की चीजें हैं कि जो आपको, आप जिस जॉब पे भी करेंगे अप्लाई, उसके मुताबिक आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिपेयर किया जाएगा। सर अगर कोई बच्चा अकेडमी ज्वाइन नहीं प्रॉपरली कर सकता, अगर उसमें नोट्स लेने हैं तो मिल जाएंगे? ले सकता है, बिल्कुल बेटा ले सकता है। अगर कोई सिर्फ नोट्स चाहता है वो भी ले सकता है, अगर कोई नोट्स एंड रिकॉर्डिंग चाहता है वो भी ले सकता है। लेकिन आई सजेस्ट कि, क्योंकि एज ए डायरेक्टर आई एम हेयर टू टॉक विद यू, अगर किसी को कोई फाइनेंशियल इशू है, हम लोग स्कॉलरशिप्स भी हैं जिसमें नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी हैं, वैसे भी जो ऑन मेरिट स्कॉलरशिप भी हैं, तो आप मिस बतूल से बात करें इंशाल्लाह ताला। लेकिन लेकिन अब हमारा बदकिस्मती है कि हमारे बच्चे भागते ही नोट्स के पीछे हैं। फिर वही बात जो भी मैंने की है, असलम क्या नाम है आपका, मोहम्मद सर लाइक असलम। लाइक असलम। असलम बेटा, मेन जो प्रॉब्लम आती है ना, कि आपको नोट्स तो प्रोवाइड कर दें, वो कोई नहीं, हमने तो यहाँ देने ही हैं, हम इसलिए रखे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है मेरा बेटा कि आपको ये नहीं पता चलेगा किस चीज को कितना करना है और कितना नहीं करना। ठीक है, अभी एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ना मेरे साथ, आपको उसमें से पता चल जाएगा। इंशाल्लाह सर मोहसिन, एक्सपेक्टेड डेट तो मेरा बेटा आपको पता है कि जब तक कोविड आया तब तक कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं रहा, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है। तो प्रोबेबली एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बाय एंड ऑफ दिसंबर हो जाने चाहिए, लेकिन ना हुए तो स्टार्ट ऑफ जनवरी हो जाएंगे, यही है। सर आप बीपीएससी के पैटर्न क्या कह रहे हैं पीपीएससी का, हैदर क्या पूछा? पीपीएससी का पैटर्न अगर पूछा तो बेटा वही मैंने आपको बताया, जैसा कि जो बेसिक उनकी सिलेबस डिवीजन है वो ये सब्जेक्ट होते हैं। वो किसी में ये कहते हैं कि हमने यू कैन से जीके पूछना है, यानी कि करंट अफेयर पूछना है, पाक अफेयर पूछना है, ईडीएस पूछना है, साथ हमने इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस पूछ लेना है। किसी में वो कह देते हैं हमने इस्लामियात और उर्दू भी पूछना है और मैथ भी पूछना है। ठीक है, तो बेसिक यही सिलेबस है, इससे बाहर कोई सिलेबस नहीं होता। सर इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं? बेटा कंपलसरी एज सच कोई भी नहीं होते, जो सब्जेक्ट वो दे दें। होता ये कि अगर ओवरऑल बात करें कि सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है, तो वो ये सारे सब्जेक्ट ही हैं। होता क्या है कि अगर वो डायरेक्टली करंट अफेयर या जीके लिख देता है तो हमारे बच्चे समझते हैं सिर्फ करंट अफेयर वो पूछेगा कि अगले महीने क्या हुआ या इससे पिछले महीने क्या हुआ। लेकिन होता क्या है बेटा कि उसने उसमें जीके को भी टच करना है, वर्ल्ड अफेयर को भी टच करना है, पोर्शन कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जिस तरह अब ये सब इंस्पेक्टर के उसमें अगर उसने लाइक से लिखा ही नहीं कि उसने मैथ का पूछना है, तो मैथ का पूछेगा ही नहीं। वो जो आपको देगा इंग्लिश और उसने वो कहा है तो वही देगा आपको। उसमें क्या होगा कि आपके जो लेक्चर्स हैं वो जो बेसिक्स दूसरे हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे और मैथ्स के कम होंगे, लेकिन मैथ्स का लेक्चर वीकली होगा जरूर। और मैं तो कहूंगा कि ले लें। और एक चीज ध्यान में रखें बेटा, इस जर्नी में असल कामयाबी उनकी होती है जिन्होंने एट अ टाइम को 5-6 जॉब्स पे अप्लाई किया होता है। अगर किसी एक के पीछे भागो फिर उसके रिजल्ट का वेट करो तो उतनी देर में, जितनी देर में रिजल्ट आना होता है उतनी देर में बाद में बंदे को पता चलता है कि फेलियर के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना हमने। सर सब इंस्पेक्टर की लास्ट डेट अप्लाई करने की ये 3 है, तो सर इसका जो रिटन टेस्ट होगा उसका टाइम क्या होगा, कितने टाइम बाद वो पेपर आप लेते हैं उससे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन 2 मंथ्स इन्होंने मैक्सिमम टेस्ट कंडक्ट कर लेना होता है। तो जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 15 जनवरी के अराउंड जो है ना इस टेस्ट को आप एक्सपेक्ट करें। और इंशाल्लाह इसमें हम आपकी अच्छी प्रिपरेशन करवा देंगे इंशाल्लाह। जी, फिर अब अजान स्टार्ट होगी, कोई और सवाल है तो जल्दी से पूछ लो। और जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया वो फिर अभी रिकॉर्डिंग सुन लें। और कल जो क्लास है 9:15 पे वो डेमो क्लास होगी फॉर ऑल ऑफ यू, जिसको आप लोग अटेंड करें। फिर आपको समझ आएगी 1 घंटे में क्या क्या कुछ होता है इंशाल्लाह। और परसों से फिर आप सेशन तो अब आपका स्टार्ट हो ही गया है। स्क्रीनिंग टेस्ट तो लैलतुल कदर बेटा, स्क्रीनिंग टेस्ट जो सा है वो जैसा कि आपको पता है फरवरी में होगा। और सीएसएस के जो एग्जाम है, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, वो जाके मई के महीने में होंगे। और कोई सवाल? आई होप कि चीजें क्लियर हो गई हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो इन योर फर्स्ट क्लास एट 9:15 PM। और जिन लोगों ने एडमिशन फॉर्म शॉर्म और वो सारा प्रोसेस, फीस का बेटा मुझे वाकई नहीं पता, वो मिस बतूल से डील कर रही होती, उनसे पूछें। बट बिल्कुल बेटा स्कॉलरशिप अवेलेबल है, नीड बेस में ही है, मेरिट बेस में ही है। ठीक है, तो वो आप उनके पास जब फिर मेरे पास केस टू केस आएगा फिर इंशाल्लाह उसे देख लेंगे। चलो जी, बेस्ट ऑफ लक बेटा, खुश रहें।
अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए।